नमस्ते। स्ट्रॉन्ग रूट में आपका स्वागत है। आई वॉज born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainul Abdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. मेरा जन्म तत्कालीन मद्रास राज्य के द्वीप शहर रामेश्वरम के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुल आबदीन के पास न तो कोई औपचारिक शिक्षा थी और न ही बहुत अधिक संपत्ति। इन कमियों के बावजूद उनमें महान जन्मजात ज्ञान और उदारता की सच्ची भावना थी। He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyama. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. मेरी माँ आशियम्मा उनके लिए एक आदर्श जीवन संगिनी थी। मुझे उन लोगों की सटीक संख्या तो याद नहीं है जिन्हें वे हर दिन भोजन कराती थीं, लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हमारे अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर जितने लोग होते थे, उससे कहीं अधिक बाहरी लोग हमारे साथ भोजन करते थे। My parents were widely regarded as an ideal couple. My mother's lineage was the more distinguished, one of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. मेरे माता-पिता को व्यापक रूप से एक आदर्श दंपत्ति के रूप में माना जाता था। मेरी माँ का वंश अधिक प्रतिष्ठित था। उनके पूर्वजों में से एक को अंग्रेजों द्वारा बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे और सुंदर माता-पिता की संतान, लेकिन स्वयं साधारण कद-काठी और सामान्य रूप रंग वाला एक लड़का। We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large Paka house, made of limestone and brick, on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothing. In fact, I would say mine was a very secure childhood, materially and emotionally. I normally ate with my mother, sitting on the floor of the kitchen. She would place a banana leaf before me, on which she then ladled chavalan and aromatic sambar, a variety of sharp, homemade pickle, and a dollop of fresh coconut chutney. हम अपने पैतृक घर में रहते थे, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। ये रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली मस्जिद स्ट्रीट में चूने के पत्थर और ईंटों से बना एक काफी बड़ा पक्का घर था। मेरे साध्वी पसंद पिता सभी अनावश्यक सुख सुविधाओं और विलासिता से दूर रहते थे। हालांकि भोजन, दवा या कपड़ों के मामले में सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई जाती थीं। वास्तव में मैं कहूंगा कि मेरा बचपन भौतिक और भावनात्मक रूप से बहुत सुरक्षित था। मैं आमतौर पर अपनी माँ के साथ रसोई के फर्श पर बैठकर खाना खाता था। वह मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती थी, जिस पर वे चावल और सुगंधित सांभर परोसती थी। साथ ही कई तरह के तीखे घर के बने अचार और ताज़ा नारियल की चटनी का एक बड़ा चम्मच भर हिस्सा भी होता था। The Shiva temple, which made Rameshwaram so famous to pilgrims, was about a 10-minute walk from our house. Our locality was predominantly Muslim, but there were quite a lot of Hindu families too, living amicably with their Muslim neighbors. There was a very old mosque in our locality, where my father would take me for evening prayers. I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted, but I was totally convinced that Theya reached God. When my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside, waiting for him. Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. This water was then carried home for invalids. I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. Father always smiled and asked them to thank Allah, the merciful. शिव मंदिर, जिसने रामेश्वरम को तीर्थ यात्रियों के बीच इतना प्रसिद्ध बनाया था, हमारे घर से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। हमारा इलाका मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ काफी हिंदू परिवार भी थे, जो अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहाँ मेरे पिता मुझे शाम की नमाज के लिए ले जाया करते थे। मुझे अरबी में पढ़ी जाने वाली उन प्रार्थनाओं के अर्थ का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि वे ईश्वर तक पहुंचती हैं। जब नमाज के बाद मेरे पिता मस्जिद से बाहर आते, तो अलग-अलग धर्मों के लोग बाहर बैठकर उनका इंतजार कर रहे होते थे। उनमें से कई लोग मेरे पिता के सामने पानी से भरे कटोरे रखते, जिनमें वे अपनी उंगलियों के पोरों को डुबोते और कोई प्रार्थना पढ़ते थे। इस पानी को फिर बीमारों के लिए घर ले जाया जाता था। मुझे वो समय भी याद है, जब लोग ठीक होने के बाद शुक्रिया अदा करने हमारे घर आते थे। पिताजी हमेशा मुस्कुराते और उनसे यही कहते कि वे उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, जो अत्यंत दयालु है।